Okay, student, let us start today's topic, straight line part 2. So we did something on straight lines yesterday, and now we will be finishing this topic in today's class. I'll just quickly move on to the topic which we have to start today, and I hope the yesterday's lecture was uh, really easy to understand for you people. Let's see how it goes today. Okay. So yeah, just continuing with the topic that we did yesterday, now we have to study the subtopic, which is concurrency of lines. So what do you mean by concurrency of lines? So concurrency of lines is the thing which says, जो हमने खैर कल भी पढ़ी थी, मान लो ये दो lines हैं, two intersecting lines are there, so we know they will have one point of intersection. But what if there is another third line which also pass through their point of intersection? So these three lines will now be called concurrent at this particular point because they pass through a single point. मान लो अगर एक और लाइन ऐसी हो जो यहाँ से दोबारा पास कर रही हो इसी पॉइंट से, तो these are four concurrent lines and so on. I can keep on drawing. So these are called concurrent lines and they are concurrent at this particular point, let's say P. Okay, so if there are three lines which are given to you in this format and you need to find whether they are concurrent or not, just what you do, solve their determinant, solve the determinant of their coefficients, solve determinant of the coefficients and equate them to be 0. Solve the determinant of the coefficients and equate them to be 0, and if this comes out to be 0, then that means they are what? They are concurrent. Okay, let's see how to do this, apply this in a particular problem. So it says if the lines कौन सी दे रखी हैं आपको, x plus 2ay plus a equal to 0, x plus 3by plus b equal to 0 and x plus 4cy plus c equal to 0 are concurrent, then you are asked to find a relation between a, b and c, whether they are in AP, HP or GP. Again a very good problem because now you can understand why I am calling this is a good problem. Why? Because इसमें straight line भी use हो रहा है आपका, right? You are using straight line as well as you are using what, sequence series, because इसमें एक APGP यूज हो रहा है. तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक एग्जाम में पूछे जाने के लिए, क्योंकि इसमें दो चैप्टर्स यूज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली. ठीक है, और इसमें तीसरा चैप्टर देखो कहाँ से आ गया, वो आ गया डिटर्मिनेंट. क्योंकि आपको अगर ये दे रखा है कि ये क्या है, यस एग्जैक्टली, सो अगर ये कंकरेंट है तो डिटर्मिनेंट भी यूज करना पड़ेगा. तो डिटर्मिनेंट देखें कैसे सॉल्व होगा अब इसमें. तो आपको डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है इसमें, डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट. सो एक्स का कोफिशिएंट 1, 2a, ए, ये सारे कोफिशिएंट्स लिख दिए इनके लाइन के, 1, 3b, b, 1, 4c, c, and if they are concurrent this must be equal to 0, right? This is what you have to solve. So I'm not solving the determinant part. I hope this is pretty much easy and I will not be wasting the class time in solving the determinant part. You just solve this. After solving, what you should actually obtain is something of this sort, minus bc plus 2ac minus ab. Alright, this is what you will obtain in this particular problem. Okay, now can you rearrange them in some way or the other? आप इसको देखो क्या लिख सकते थे, 2ac is equal to ab plus bc, and if you see I can take b common from here, so this becomes 2ac is equal to b times a plus c, or you can say b is equal to what, 2ac upon a plus c, which we know that means they are in harmonic progression. So a, b and c are in harmonic progression. This is the answer, so answer is C. This is how you have to apply these kind of questions, this kind of theorem in these kind of questions. So I would say this is a very easy question but a very relevant question at the same moment. ये relevant कैसे हुआ ये आपको समझ में आया, क्योंकि इसमें आपने इस क्वेश्चन में उसने तीन चीजें पूछ ली, तीनों. तो जिसको HP नहीं पता होगा वो इसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा. जिसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में परेशानी आ रही होगी वो फंस जाएगा. जिसे स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो पहला स्टेप ही नहीं कर पाएगा. सो वेरी इजी. इनफैक्ट इसमें तीनों के इजी चीजें यूज हो रही हैं. इसका भी इजी कॉन्सेप्ट, इसका भी इजी कॉन्सेप्ट, इसका भी इजी कॉन्सेप्ट. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इजी बट ये जो मिडल वाला कॉन्सेप्ट है ये टफ हो जाता है. बट यहाँ पर ये भी आसान है, इट इज नॉट इवन टफ. So that is why I am calling this a very easy problem. Every student should be able to do this if they know this particular concept. Okay, let's move ahead. Okay, moving on further, then next topic that we have to do is distance of a point and a line.
right? So if you want to find a perpendicular distance of a point alpha comma beta from this particular line, तो आपको करना कुछ नहीं है, just substitute the value of this point in this line. That means replace x by alpha and y by beta and divide by under root a square plus b square. Remember, this is for the perpendicular distance. So that means if this is the point and you are trying to find perpendicular distance, so this is p we are talking about here, right? Similarly, if you want to find length of perpendicular from origin, so it is much easier because now alpha and beta are both 0. So this quantity and this quantity will become 0. You are left with only c. And the same rule can be applied for finding distance between two parallel lines. So if these two are parallel lines, so first of all, what do you mean by distance? Distance means this is the distance, which is a line which is perpendicular to both of them. This is the d. आपको पहले करना क्या पड़ेगा, दोनों लाइन्स. So for example, एक है ax plus by plus c1, तो दूसरी को भी आप कैसे लिखो, ax plus by वाले फॉर्मेट में प्लस c2. तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. कई बार इस वाली कैटेगरी में प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको बता देता हूँ. मान लो एक लाइन थी x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, और आपको दूसरी लाइन दे रखी थी 2x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0. तो हमें ये देखने से तो पता है कि ये क्या है, दे आर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस. वी नो दिस फैक्ट बिकॉज इनका a जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो है वो क्या है, सेम. बट आप इसमें अभी c1 की वैल्यू इसमें अगर आप ले लेते हो कि सर मैं c1 ले लूंगा 3 और c2 में ले लूंगा माइनस 16, तो ये गलत है, राइट? सबसे पहले आपको करना क्या है, नोटिस करो, यहाँ पर भी ax है तो यहाँ पर भी ax है, यहाँ पर भी ax है तो यहाँ पर भी bx है. तो व्हाट यू विल डू, पहली लाइन में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस विल रिमेन एज इट इज. सेकेंड लाइन को व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड इट बाय 2 फर्स्ट ऑफ ऑल. तो क्या बन जाएगी, माइनस 8 इक्वल टू 0. अब आप c1 को क्या बोलोगे, c1 इज 3, c2 इज नॉट 8, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज माइनस 8. डोंट डू दिस एरर. सो देन d बिकम्स व्हाट, समझ में आया अब आपको कैसे सॉल्व करना है. तो 3 माइनस माइनस 8 11 बाय अंडर रूट 2. So this is the answer we were looking for in this kind of question. Okay, let's apply this in a problem. Okay, so now the problem says that if p and p dash be the length of perpendicular, all right, from origin to the lines which are, so these two are the lines which are given to you, ठीक है, और इनका perpendicular distance from origin हमें p और p dash दे रखा है. So this is p and this is p dash. This is what we want to show by using the formula, ठीक है. और इसमें थीटा बहुत आ रहा है तो देखा जाए दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री प्लस स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम. इसमें आपसे ट्रिग्नोमेट्री और चेक करी जाएगी. कैसे वो देखें, आपको डिस्टेंस कहां से निकालना है, फ्रॉम, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज 0 से आपको डिस्टेंस निकालना है. तो जो मेरी पहली लाइन है, जरा इसको सॉल्व करके देखें, ठीक है. ये क्या बन गई, एक्स सीकेंड थीटा माइनस वाई कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू ए. एंड लेट अस नाउ रिड्यूस दिस. इसको पहले कॉसेक को हटा के क्या करते हैं, सिंपल कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दें. तो ये बन जाएगा y बाय साइन थीटा इक्वल टू ए. तो आप इसको क्या लिख सकते थे, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये लिख सकते थे. और यही क्या बन जाएगी फिर चीज, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, और मैंने इसी को क्या लिख दिया, देखो a साइन 2 थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके. यहां तक किसी को कोई दिक्कत देखो इस स्टेप में. तो लाइन 1 को मैं ये बोलूं या फिर ये बोलूं, बात बराबर है, ठीक है. अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना था फ्रॉम ओरिजिन. सो p इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. क्या करोगे आप, x की जगह 0 पुट करोगे, y की जगह 0 पुट करोगे और मॉड लगा दो. तो मॉड लगाने के बाद क्या बनेगा, सिर्फ माइनस a बाई 2 साइन a बचेगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट, ये क्या बन गया, a बाई 2 साइन 2 थीटा बन गया आपका. मॉड और लगा देता हूं, ये क्या बन गया आपका p. ये p की वैल्यू आ गई. नाउ लेट्स ट्राई एंड फाइंड p डैश. p डैश के हिसाब से हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो फिर से जब आप इसमें 0 और 0 पुट करोगे, क्या बचेगा न्यूमरेटर में, माइनस a कॉस 2 थीटा, और नीचे क्या बनेगा, देखो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा which is again 1. so this actually reduces to a cos 2 थीटा का मॉड.
ये बन जाएगा। हमें अब जो निकालना है उसको देखते हैं। सो हमारा टारगेट है LHS क्या है हमारा, LHS इज 4p² प्लस p' तो 4p² में देखो क्या हो रहा है, p² करता हूं तो बना a²/4 sin² 2 थीटा, p' कितना होगा a² cos² 2 थीटा। दिस 4 and 4 कैंसिल्स आउट, बचा क्या आपके पास a² भी देखो कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा sin² 2 थीटा प्लस cos² 2 theta which is nothing but again 1. This is nothing but a² which is r RHS. So this is how you have to solve this particular problem and how to apply distance formula in basic problems. ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड, ये एक्सटेंसिवली यूज होता है बड़े सारी जगहों पे, बट आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल वेयर आई हैव मिक्स्ड ट्रिग्नोमेट्री एंड द बेसिक फॉर्मूला टू फॉर्म अ क्वेश्चन. ओके, let's see the advanced version of this particular problem, or let's say a concept. So the next concept that we have to talk about is area of parallelogram, जो कि derive होता है वैसे perpendicular वाले फॉर्मूले से, but we are not going to get into the derivations. So for example, these are the 4 lines which are given for the parallelogram. Let's say this is a1x b1y plus c1 equal to 0. So the opposite side is a1x b1y plus c2 equal to 0. Similarly, I can say this is a2x plus b2y plus d1 equal to 0. So this equation will become a2x plus b2y plus d2 equal to 0. ये आपको दे रखा है, तो आपसे पूछा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वैसे हमें पता है क्या होता है, एरिया इज नथिंग बट बेस इनटू हाइट, राइट. तो यू वर बीइंग आस्क्ड टू सॉल्व बेस इनटू हाइट, जिसके लिए बेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे सारे. हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है. द सिंपल फॉर्मूला इज मॉड ऑफ c1 माइनस c2 इंटू मॉड ऑफ d1 माइनस d2. तो c1 माइनस c2 कहाँ से आ रहा है, दो पैरेलल लाइंस वाला. c1 और c2 कौन है, पैरेलल लाइंस वाले. d1 d2 फिर से पैरेलल लाइंस वाले. नीचे क्या करना है आपको, तो जो दो लाइंस आ रही थी डिफरेंट डिफरेंट, देखो उनका एक का x और y का कोफिशिएंट ये था, दूसरे का x और y का कोफिशिएंट कुछ इस तरीके से था. उन दोनों का डिटर्मिनेंट लिख दो नीचे, that is a1 a2 b1 b2, and this particular answer will give you area of complete parallelogram. Let's see how we apply this in a particular problem. So let us apply the formula that we just did in this particular case. So it says find the area of the parallelogram formed by these 4 lines. So let me write the lines for you. So this is the first line, this is the other line, and this is the parallel component of it, right. और अगली लाइन देखो 3y माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, और अगली यहाँ पर है 3y माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट. तो जिस तरीके से लाइन है ये, okay, sorry, I have wrongly written the lines. It is 4y minus 3x is equal to 1, and this is 4y minus 3x is equal to 3, right. So this is set of parallel line and this is a set of parallel line, right. Let me now introduce what I have meant by the formula. So this area was what, mod of c1 minus c2, right, mod of d1 minus d2 divided by a1 b1 a2 b2, right. So this was the thing. अब अगर आप नोटिस करो इन दोनों में, या तो आप दोनों लाइनों को पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में अरेंज कर लो जैसे आपका मन करे. तो अगर मैं वो करके दिखाता तो ये क्या होता, माइनस 3x प्लस 4y, राइट, माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा सेट क्या बन जाता है सिमिलरली, माइनस 3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, तो इनका c1 माइनस c2 कितना आ जाता है, 2. मॉड है क्योंकि पॉजिटिव, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा. अगला पेयर देखें, अगला पेयर होता माइनस 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0. ये सेट अनदर पैरेलल लाइंस का, ये वाला सेट पैरेलल लाइंस का. इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, c1 माइनस c2 का 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1. इस केस में a1 b1 क्या है, माइनस 3 और 4, माइनस 3 4, और a2 b2 क्या है, माइनस 4 और 3. ठीक है, तो ये कुछ आंसर हो जाएगा बस इसका. आप देखो 2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना बन रहा है, देखो 9 माइनस 9 प्लस 16, so this is nothing but 2 by 7. This is the answer we are looking for. So without even solving for any vertices, we have directly found what is the
area to this particular parallelogram. Okay. Now let us take another problem which is based on the area but a bit different from the earlier one. It says find the area of the figure formed by this. So first of all we need to understand what is the figure, right? ये देखा जाए तो मॉडुलस के ऊपर बेस्ड है, मॉडुलस प्रॉब्लम, राइट? सो मॉडुलस की वजह से इसमें देखो बड़ी सारी लाइनें बनेंगी, कौन सी? अब वो देखो मॉडुलस जब हटता है तो क्या आता है? प्लस माइनस. तो आई कैन राइट दिस एज प्लस माइनस दिस, इस तरीके से कुछ लिख सकता हूं इसको मैं. अब प्लस माइनस के हिसाब से अगर दो जगह देखो प्लस माइनस है, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, माइनस माइनस, तो चार पेयर बन सकते थे, दोनों तरफ प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं सारी. उसी हिसाब से देखो चार लाइनें बनेंगी. तो पहली लाइन कौन सी बना दो? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां ये दोनों पॉजिटिव. सेकेंड लाइन ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये दूसरी लाइन. तीसरी लाइन माइनस इधर प्लस इधर इक्वल टू जीरो. और चौथी लाइन कौन सी होगी आपकी? दोनों में नेगेटिव. कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये. यस. सो ये पहली बात मतलब था कि आपकी फिगर कैसे बनेगी. अभी हम फिगर भी बनाएंगे. तो अगर नोटिस करें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं. ढंग से देखो. सो दीज टू आर पैरेलल लाइन एंड दीज टू आर दी पैरेलल लाइंस. क्यों? ये माइनस कॉमन हट जाएगा तो ये देखो लाइन क्या बन गई? ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो. और अगर मुझे इस वाली को चेंज करना था, ये वाली चेंज होकर क्या हो जाएगी? ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो. तो चार लाइनें आ गई आपके पास. ठीक है, पहली बात. अब जब चार लाइनें आ गई तो उनको ड्रॉ भी करके देखते हैं क्या फिगर बन रही है पहले. ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से. ठीक है, तो आओ उसका डायग्राम देखते हैं. डायग्राम क्या बनेगा? मैंने डायग्राम एक रफ स्केच बनाया है. सो लेट्स से इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर लाइन, लेट मी कॉल दिस एज माय L1 लाइन. ठीक है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? तो अब यहाँ देखें एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलता है. आप y को जीरो पुट कर दो तो वो क्या आ रहा है? माइनस सी बाय. और एक्स इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? माइनस सी बाय. और वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा जब आप a को जीरो पुट एक्स को जीरो पुट कर दोगे? दैट इज माइनस सी बाय बी. दैट मीन्स बोथ नेगेटिव. ठीक है, तो ये लाइन कौन सी होनी चाहिए बता सकते हो इन चारों में से? दो रेड बनी है, दो ब्लैक बनी हुई है, इनमें से L1 लाइन कौन सी होगी? L1 लाइन का एक्स इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है. मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि ए बी और सी तीनों क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं. ठीक है, एक कोई भी केस मान लेते हैं. तो देखो एक्स इंटरसेप्ट ये भी नेगेटिव और वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव. सो ये इस पर्टिकुलर लाइन के लिए हो रहा है. तो ये मेरी कौन सी हुई? L1 लाइन. ठीक है, और L1 और ये जो फोर्थ लाइन है L4, ये तो क्या थे? पैरेलल. तो ये ऑब्वियस ही बात है क्या होनी चाहिए थी? दिस शुड बी दी पैरेलल लाइन. ये आ भी रही है. देखो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? सो एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे? वाई को जीरो डाल के, तो वो कितना आ रहा है? सी बाय. वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलता था? एक्स को जीरो डाल के, वो कितना आ रहा है? देखो सी बाय बी, वो भी पॉजिटिव. सो दिस इज L1 एंड दिस इज L4. ठीक है, अब ये वाली चीज अगर आप नोटिस करो, ये वाली लाइन कौन सी होगी बता सकते हो? इसमें एक्स इंटरसेप्ट कौन सा है? नेगेटिव. वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव. आओ इस लाइन को देखें, लाइन 2 को. लाइन 2 की इक्वेशन क्या है? ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है भाई? इट इज माइनस सी बाय नेगेटिव. ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट बताओ क्या आ रहा है? सो वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन इज व्हाट? सी बाय बी. सो ये वाली लाइन क्या हो गई? इसका मतलब L2. और ये वाली लाइन क्या हो गई? L3. सो ये सेट ऑफ पैरेलल लाइन है, ये सेट ऑफ पैरेलल लाइन है. अब इनके इंटरसेप्ट जरा मार्क करते हैं. ये वाला मेरा पॉइंट कितना आ रहा है? सी बाय बी. ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है मेरा? सी बाय ए. दिस इज कमिंग टू बी माइनस सी बाय ए. और ये आ रहा है माइनस सी बाय बी. कुछ एक और कॉमन प्रॉपर्टी नोटिस करी आपने इसमें कि जो इंटरसेप्ट हैं वो सारे बराबर आ रहे हैं. और ये सिंस ये क्या है? 90 डिग्री है ना, ये ओरिजिन है क्योंकि ये तो. ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो लेंथ बन रही है, अगर मैं अब इनके नामकरण करूं ए बी सी और डी, सो कहना है इसे ऑल दी साइड्स आर इक्वल. ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी. ये सारे बराबर हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए. क्यों? ये सारे देखो ना, हाइपोटेन्यूज ये बराबर हो गए. ये लेंथ कितनी है? सी बाय. ये लेंथ कितनी है? सी बाय बी. ये भी लेंथ कितनी हुई? सी बाय. और ये लेंथ कितनी हुई? सी बाय बी. सो दे ऑल आर इक्वल एंड द हाइपोटेन्यूज विल आल्सो बी इक्वल. सो दैट इंप्लाइज
जो ये फिगर बन रही है, जो यहाँ फिगर वर्ड यूज करा जा रहा था, सो फिगर जो बन रही है इट इज नथिंग बट फिगर इज अ rhombus. All the sides are equal. This happens only when it's a rhombus. rhombus में हमें पता है जो एरिया निकालना है, पैरेललोग्राम जो बन रहा है ये उसका एरिया निकालना है. सो व्हाट वी कैन से बाय सिमेट्री इज, आप ढंग से नोटिस करो, मैं अगर इसको इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल लूं, सो rhombus का एरिया इज नथिंग बट शेडेड एरिया, और उसको इंटू 4 कर दूंगा, बात बन जाएगी. देखो मुझे इसमें फॉर्मूला लगाने की भी क्या जरूरत है, मुझे पता चल गया टू सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं ये, उसमें मैं अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा सकता था, बट आई एम अवॉइडिंग दैट. वाई? बिकॉज आई कैन ऑल्सो सी बाय सिमेट्री कि अगर मैं इसको 4 टाइम्स कर दूंगा तो मेरे को पूरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा. और शेडेड रीजन वाला एरिया निकालना और भी आसान है. देखो क्यों, 4 इंटू, ये तो सिंपल क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट नहीं हो गया, ट्राइंगल बना हुआ है, हाफ बेस की देखो सी बाय ए इंटू सी बाय बी, सो आंसर इज नथिंग बट सी स्क्वायर बाय 2ab. That's it. This is the answer. Or somewhere you will also find this answer written as c square by 2 modulus ab. Don't be worried about it. It's the same answer. Mod किस लिए लगा है? Because area must always be positive. So a और b में से हो सकता था एक नेगेटिव हो, mod लगाने की वजह से वो क्या बन जाएगा, हमेशा पॉजिटिव. राइट? सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो मॉड वाले प्रॉब्लम से आगे से घबराना नहीं है. कीप इन माइंड मॉडुलस प्रॉब्लम को सिंपली ब्रेक कैसे करना है, प्लस और माइनस का साइन लगा के फॉर्म द इक्वेशंस, सॉल्व इट. ओके ओके, सो नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट concept that we have to study, that is the angle bisector concept. Okay, angle bisector of two lines. So पहले एक बात, दो लाइनें बना के देखते हैं कि क्या मतलब है एंगल बाइसेक्टर का. Okay, so let us try and understand the concept first of all. What do you mean by angle bisector concept? So angle bisector में अगर मैं नोटिस करूं, दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हो सकता है एक एक्यूट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगी और एक ऑब्ट्यूज. जैसे देखो ये वाला जो बड़े वाला है ये है ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज द एक्यूट एंगल. सो अगर मैं एक लाइन लेता हूं जो इस एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगी, सो दिस इज नोन एज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, वेरी बेसिक स्टफ, राइट? एंड सिमिलरली द एंगल विच बाइसेक्ट्स द, और लाइन विच बाइसेक्ट्स द obtuse angle, so this is known as obtuse angle bisector. As the name says, very simple stuff, right? मेरे को ये डायग्राम बनाने का एक लॉजिक दूसरा है. अब देखो मैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. एंगल बाइसेक्टर्स, व्हाई एंगल बाइसेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. सो हाउ डू यू फाइंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन क्या है, आप दोनों लाइंस को लिखो, मॉड लगाओ और नीचे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोफिशिएंट, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. आप जरा नोटिस करो, ये कुछ आपको चीज दिख रही है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट का ही फॉर्मूला है. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कुछ वैसा ही है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टाइप का. ये एक्चुअल में वही चीज है. ये आया कहां से, वो रूल देखो. इफ आई टेक एनी पॉइंट p, लेट्स से मैंने यहां ले लिया, ठीक है. अब मैं अगर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करता हूं इन दोनों लाइंस के ऊपर, जिसका ये परपेंडिकुलर, जिसका ये बाइसेक्टर है, ठीक है, d, तो ये एक मान लो d1 आया था और एक क्या आता d2. एक्चुअल में ये d1 इज इक्वल टू d2. सो एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर्स, अगर मैं बात करूं एंगल बाइसेक्टर्स, सो व्हाट डू यू मीन बाय एंगल बाइसेक्टर्स. एंगल बाइसेक्टर्स आर एक्चुअली लोकस, डोंट वरी, वील स्टडी लोकस. व्हाट इज लोकस? लोकस ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from two lines. Locus of points equidistant from two lines. ठीक है, इसका क्या मतलब है, आप जितने भी पॉइंट लोगे, क्या कहते हैं, आपके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लोगे उनकी दूरी दोनों लाइन से हमेशा बराबर होगी. यहां पर भी ले लो, चाहे फिर आप ऑब्ट्यूज एंगल में भी ले लो, तब भी वो क्या होंगी, दोनों में बराबर की दूरी पे होंगे. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, तभी ये इस तरह की कुछ रिलेशन आ रही है कि a1 कुछ आपको जो दिख रहा है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले दोनों बराबर कर दिए गए, इसलिए डिस्टेंसेस दोनों बराबर करे गए. एक्चुअल में हमने d1 और d2 को सेम करा है. अब हमें कैसे पता चले कि भाई इनमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है. तो फिर से सिंस मॉडुलस था तो मॉडुलस हटेगा तो क्या आ जाएगा भाई, प्लस माइनस. तो उसके लिए रूल क्या करना है, टू फाइंड आउट वेदर दे आर एक्यूट और ऑब्ट्यूज. सबसे पहला काम, मेक कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव.
कांस्टेंट टर्म के साइन को पॉजिटिव बना दो, ठीक है, पहला रूल, दैट इज C1 एंड C2 शुड बी ग्रेटर देन 0, सबसे पहला काम। उसके बाद जो A1 A2 आएंगे कोविशेंट्स, तो उनका क्या करना है, A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 का साइन चेक करना है। सो इफ A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है, तो आपका पॉजिटिव साइन ही आपको क्या आंसर देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दे देगा। एंड सिमिलरली इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज नेगेटिव, देन नेगेटिव साइन विल गिव यू द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो इसको याद क्या रखो, जो साइन आता है A1 A2 प्लस B1 B2 का, वो आंसर किसका हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का आंसर हो जाता है। साइन वॉट एवर दी साइन इज, रिप्रेजेंट दिस आंसर फॉर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और उसका अपोजिट साइन कर दोगे तो किसका आंसर आ जाएगा। अगर देखो यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव लेना पड़ेगा एक्यूट के लिए, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए। तो दिस इज हाउ यू फाइंड एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू पर्टिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करते हैं इसको। सो फॉर स्ट्रेट लाइंस, दीज टू स्ट्रेट लाइंस आर गिवन। ठीक है, कौन कौन सी लिख लेते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट लाइन, द अदर लाइन इज 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये दो लाइंस दे रखी हैं। सबसे पहला काम क्या, देखो इसका पहले वाली लाइन का c पॉजिटिव है, नहीं है, तो आप क्या करो, पॉजिटिव बना दो बाय मल्टीप्लाइंग विद द माइनस साइन। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। तो ये क्या लाइन बन गई, 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, सो अब देखो इसमें अगर मैं पूछता हूं तो A1 is nothing but -4, B1 is nothing but -3, A2 is 5 and B2 is 12। ठीक है जी, तो A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमें देखो पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो साइन से मतलब है। सो जस्ट चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव, सो ऑब्वियसली दिस विल कम आउट टू बी नेगेटिव वैल्यू। सो अगर मुझसे पूछा जाता था व्हाट इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, सो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा, पॉजिटिव साइन वाला या नेगेटिव साइन वाला। A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन क्या है, नेगेटिव, राइट, इट्स साइन इज नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन वाला आंसर किसका हो जाएगा, वो तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का हो जाएगा। सो एक्यूट के लिए क्या लोगे आप। अब देखो ये गलती मत करना कि आपने यहाँ 4x प्लस 3y माइनस 6 ले लिया, ये हो जाएगा गलत। लाइन हम किस में कन्वर्ट कर चुके हैं भाई, दिस इज द न्यू लाइन दैट यू हैव टू टेक। सो आंसर भी कैसा होगा, -4x माइनस 3y प्लस 6 अंडर रूट व्हाट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब एक्यूट के लिए क्या लोगे, एग्जैक्टली पॉजिटिव। सो और दूसरा वाला तो लाइन चेंज नहीं करी तो वो एज इट इज रहने दो, प्लस 9 एंड दिस विल नाउ बी अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, राइट, जो कि आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। नीचे वाला 5 बन रहा है, नीचे वाला 13 बन रहा है। ठीक है, ऑब्ट्यूज के लिए आपको सिमिलरली क्या पढ़नेगा, ऑब्ट्यूज के लिए आप सिमिलरली क्या करोगे, विल जस्ट रिप्लेस दिस पॉजिटिव विद अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। ठीक है जी, थर्ड पार्ट देखो, इसमें थर्ड पार्ट थोड़ा नया है। थर्ड पार्ट कहता है फाइंड द बाइसेक्टर विच कंटेन्स ओरिजिन, विच कंटेन्स ओरिजिन। ठीक है, सो ओरिजिन वाले कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करना उसका मैं रूल बताता हूं। इफ यू नीड टू फाइंड एन एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन्स द ओरिजिन, तो उसमें आपको करना क्या है, मेक कॉन्स्टेंट्स ऑफ सेम साइन, मेक कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, पहला स्टेप। और सिर्फ फॉर्मूले में अब क्या करना है आपको, इन फॉर्मूला सिंपली यूज दी पॉजिटिव साइन, यूज पॉजिटिव साइन। जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, कंटेनिंग दी ओरिजिन, एज सिंपल एज दैट। सो इसमें हमने ये देखो काम करा हुआ है ऑलरेडी। इसमें कांस्टेंट पॉजिटिव बना के हमने ये इक्वेशन लिखी थी, ये दो। ठीक है, उसके बाद हमने पॉजिटिव साइन किसके लिए लिया था, एक्यूट एंगल के लिए। सो ये वाला जो प्लस वाला आंसर था, दिस कंटेन्स दी ओरिजिन। सो आई कैन से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कंटेन्स दी ओरिजिन, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, राइट, कंटेन्स दी ओरिजिन, राइट। इसका क्या मतलब है समझ लेते हैं वो एक बार डायग्राम बना के। मान लो आपके पास फिर से ये दो लाइंस थी, ठीक है, और ये वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वाला रीजन है। ये ऑब्वियसली बात है, देखो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दूसरा ऑब्ट्यूज। सो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के ये दो रीजन है,
ओरिजिन विल लाई इन दिस शेडेड रीजन। सो ओरिजिन जो है आपका इस शेडेड रीजन में लाई करेगा। ओरिजिन इज इन शेडेड रीजन। दिस इज मेंट बाय व्हेन एंगल बाइसेक्टर कंटेन्स दी ओरिजिन। अगर ये मैं नेगेटिव साइन वाला ऑब्ट्यूस वाला आंसर आता तो इसका मतलब वो दूसरे वाले रीजन में पर्टिकुलर आंसर आता। ठीक है, क्लियर? Okay, now let us do the concept foot of perpendicular in image. So the foot of perpendicular of a point is basically if you drop a perpendicular from a point to the corresponding line, the point of intersection of these two lines, ये आपने perpendicular drop करा, so this was the P point which is given in the question as x1 y1, and this is the given line. This is the line ax plus by plus c equal to 0. So this particular point, ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट आ रहा है इसे हम कहते हैं पॉइंट जो m है। दिस पॉइंट m इज नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ड्रॉपिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन। देखो इसके निकालने के अगर मैं प्रोसीजर मेथड बताऊं जो आपको सीबीएसई में या फिर हम कोचिंग में भी कराते हैं, वो क्या है वो देखो। सो इट इज समथिंग ऑफ, अगर m की बात करूं तो m इज इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। m है क्या, इज इंटरसेक्शन ऑफ टू पर्टिकुलर लाइन्स। कौन कौन सी लाइन, एक तो गिवन लाइन, एक गिवन लाइन प्लस दी लाइन परपेंडिकुलर टू इट, इन दोनों का क्या है वो इंटरसेक्शन। तो गिवन लाइन तो है ही मेरे पास, तो परपेंडिकुलर लाइन कैसे आएगी। सो आवर टारगेट इज टू फाइंड हाउ यू विल गेट दिस परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन के लिए एक पी पॉइंट तो ऑलरेडी है ही आपके पास, बचा क्या सिर्फ इस लाइन की स्लोप। ठीक है, इस लाइन की स्लोप कैसे निकलेगी वो भी आ गई आपके पास। क्यों, ये जो लाइन है और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो अगर इसकी m स्लोप थी तो इसकी क्या हो गई -1/m। सो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड देन कैन टेल मी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। But right now since we are revising this chapter and we don't have time to do the procedure method, there is the direct formula that you can apply, right? X minus x1, x1 is the point which is of which foot of perpendicular has to be found. इसमें जो x और y हैं, x y are coordinates of, they are the coordinates of foot of perpendicular. ठीक है, तो अगर आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर दोगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, माइनस टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम लॉजिक से मैं इमेज निकालना भी सिखा सकता हूं आपको। देखो इमेज क्या है, अगर ये जो पॉइंट था P, आपको इसकी इमेज निकालनी है यहाँ, ये P डैश। इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है, उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और जितना ये डिस्टेंस है, जितना ये डिस्टेंस आप ऊपर ट्रेवल कर रहे हो ये d, उतना ही डिस्टेंस उस लाइन के नीचे ट्रेवल करो, डिस्टेंस d। ठीक है, तो देखा जाए दिस एक्चुअली इज बीइंग सॉल्व्ड बाय फाइंडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आप सबसे पहले इमेज निकालने के लिए, अगर आपको प्रोसेस मेथड करना है तो इमेज के निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, विल फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आप अभी ऊपर निकाल के आए हो। उसके बाद तो सिंपल है, क्यों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज मिड पॉइंट ऑफ पी एन पी डैश। ठीक है, पी एन पी डैश का क्या है वो मिड पॉइंट, तो उस हिसाब से आपके पास क्या आ जाएगा, पी डैश की वैल्यू आ जाएगी। बट अगेन वी विल नॉट बी फॉलोइंग दिस प्रोसेस, अगेन वी विल फॉलो दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हियर एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट, दे फॉलो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, आई इसमें डिफरेंस क्या देखो इन दोनों में, दोनों फॉर्मूले में ये दोनों टर्म्स तो सेम है, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी। यहाँ चेंज आ जाता है, ये हो जाता है -2 ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट सॉरी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सेम, द ओनली डिफरेंस विल बी ऑफ -2। यू विल हैव टू ऐड, इनफैक्ट दिस इज समथिंग, -2 को याद रखने का तरीका कैसा है, आप देखो ना, नोटिस करो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, डी डिस्टेंस यहाँ है, डी डिस्टेंस यहाँ है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d। ये सिर्फ याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, लॉजिक भी है पर प्योर लॉजिक नहीं है, इसलिए इसको क्या कर दोगे ट्वाइस। ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग इनटू द प्रूफ ऑफ दिस, दिस इज बियॉन्ड द टाइम लिमिट्स दैट वी हैव फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स अप्लाई दिस इन द फॉर्मूला, और देन लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला इनटू द क्वेश्चंस। लेट्स सी, बड़ा फेमस प्रॉब्लम आता है हर बार रिफ्लेक्टेड रे का। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, वो वाला क्वेश्चन लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट अलोंग दिस गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस जो है आपका is acting like a, let's say it's acting like a mirror.
ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। कुछ ऐसी लाइन थी, यहां से यहाँ आई, टच हुई और यहां से फिर वो वापस चली गई। ठीक है, so there are various methods of solving this particular problem, various methods. Okay, let's see how we will approach this in this particular lecture. So let me write the lines for you. Line जो हमें है वो दे रखी है x plus root 3y is equal to root 3, right? I am going to tell you the shortest approach of solving this kind of problems. Okay, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस मिरर जो बना है इस बार वो कौन है, एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है भाई, y इक्वल टू 0 लाइन। कैन यू टेल मी दी पॉइंट ए? ऑब्वियसली ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की तो आपको इक्वेशन दे रखी है ना, दिस इज दी इंसिडेंट रे एंड इक्वेशन ऑफ विच इज गिवन टू यू। सो इसका अगर आपको एक्स एक्सिस पे निकालना है तो बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करोगे, y को 0, तो ये क्या आ गया रूट 3। एक्स इंटरसेप्ट के लिए यू जस्ट सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट, इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, रूट 3,0, राइट। अब देखो रिफ्लेक्शन का लॉजिक मैं बताता हूँ आपको, मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा। ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी इसे बैक ट्रैक कर दो। ठीक है, और क्या करो, इसके ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो इंसिडेंट रे के ऊपर, सिंपल सा जो आपको लगता हो कि सबसे ज्यादा सिंपल है, उसका जो मिरर इमेज बनेगा इसके अंदर। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बनाया, ये मिरर इमेज, इस पॉइंट P का मिरर इमेज जो बनेगा इसमें, दैट विल ऑलवेज पास थ्रू, दिस विल ऑलवेज पास थ्रू योर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्टेड रे की, दिस इज हाउ इट इज बीइंग मेड। आप जो रे ऑप्टिक्स में भी बनाते हो वो इसी लॉजिक से बनाते हो। तो आप क्या करो, कोई भी एक जनरल पॉइंट P की इमेज निकाल दो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो अगर मैं P की बात करता हूं, लेट्स टेक P लेने के लिए सबसे आसान देखो क्या लेता हूं, आप x को 0 डाल दो इस बार। इफ आई पुट x इक्वल टू 0 दैट मीन मैं y एक्सेस, y इंटरसेप्ट निकाल रहा हूं इसका। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1। सो मैंने अपना ये जो P पॉइंट है ये क्या ले लिया इस बार, 0,1 ले लिया। ठीक है, 0,1, नाउ आई नीड टू फाइंड 0,1 की रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ये तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। 0,1 की मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस क्या होगी भाई, मिरर इमेज, यस एब्सोल्युटली राइट। सो मिरर इमेज ऑफ दिस इज नथिंग बट 0,-1। ठीक है, आपको रिफ्लेक्टेड रे पूछी गई थी। ठीक है, RF लिख देता हूं इसे, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, आपके पास दो पॉइंट है जहां से वो पास करेगी, एक है 0,-1 एंड दी अदर पॉइंट इज जो आपने ए निकाला था, दैट इज रूट 3,0। just solve by 2 point form, that's it, question over. No need to find the angle between the lines, whatever you people keep doing on. This is the simplest approach to solve this particular problem. अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, y प्लस 1 इज इक्वल टू स्लोप निकाल रहा हूं बस मैं, देखो इसकी कितनी आसानी से, और कितना हो जाएगा x माइनस 0, खत्म। सो दिस इज द आंसर विच वी वर आस्क्ड टू फाइंड, दिस इज द पर्टिकुलर आंसर, दैट्स इट, question over. Okay, so this is how you generally solve the standard reflected problem up to the JEE mains level or the other competitive exam. हो सकता है एडवांस के लेवल पे कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज आए जो कि इसमें लगाने में मुश्किल हो, पर ये कॉन्सेप्ट हमेशा वैलिड है। सो दिस इज एक्चुअल में ये कोई ट्रिक नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट, डोंट वरी अबाउट इट। तो हमने कोई ट्रिक नहीं करी है, दिस इज अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट, जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वही है ये। ठीक है, बट आगे से रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व विद इन 30 सेकेंड्स, विच इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, so if I have to teach you how to apply the formula that we have just did, let's say I take a random example. So let's say 3x plus 4y is equal to 5, this is the line, right? And we need to find the image of, let's say 1,2 in this particular line. So how do we solve it? So formula था x minus x1 में x minus 1 by a क्या हो गया आपका 3, ठीक है, y minus 2 by 4 is equal to minus times a x1 के लिए क्या करोगे 3 into 1
प्लस 4 × 2 और -5 को एक तरफ ले आओ, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था, a² + b² विच इज 3² + 4². नाउ इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट योर आंसर, दैट्स इट. सो आप देखो इसको सॉल्व करो, x - 1/3 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, 3 + 8 11, 11 - 5 6 और नीचे कितना बन गया 25, ठीक है. तो ये बन गया -6/25. सो दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एब्सिसा. और सिमिलरली आप अगर सॉल्व कर लोगे y - 2/4 इज इक्वल टू -6/25, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ordinate. So you will get both the coordinates of image like this. So this is how this has to be applied. Okay, basic stuff. Let's take another problem to understand this concept. Okay, now let's take the other problem, which is a very interesting problem, and in fact you should actually remember this. Let me highlight this for you as a formula. Another formula question, right? Formula बोल दो, short trick method बोल दो, trick, whatever you want to call it, right? Let's see. So it says that a 1,1, let's say this is 1,1 here, ठीक है, and there are 2 points, this the other being is the 3,2. Let me draw it here. This is 3,2. So this is a and this is b point over here, right? If c is a point on x-axis such that AC plus BC is minimum, so now you need a point. Let's say if I take this as C, right? What you people require is that this distance has to be, sorry I am drawing a very tilted line, but yes, I am just trying to understand or teach you that what it is meaning, what it is meant by the diagram. So AC plus BC you were being asked, so this is something that AC plus BC has to be minimized, and obviously this will be minimized, you cannot maximize it. Can you understand this? Because maximum तो कुछ भी हो सकता है, आप c को infinity पे ले जाओ तो maximum value आ जाएगी, right? Let me draw a proper diagram for this to make you understand how we will attempt this particular question. Okay, now so what I have done is that I have taken a c point on the x-axis. So पहली बात ये x-axis है, ठीक है, थोड़ा आसान ही हो गया क्वेश्चन, अगर जैसे ही x-axis दे दिया जाए तो c को आप क्या ही मान लो, x, 0 मान लो, ठीक है. आपको AC प्लस BC का डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो वो मिनिमाइज देखो कैसे होता है. इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या यूज होगी कि जो आपका A पॉइंट है, आप क्या करो, BC को पहले तो एक्सटेंड कर दो. BC को आप क्या करोगे, यू विल एक्सटेंड द BC, राइट? आफ्टर एक्सटेंडिंग द BC व्हाट यू विल टेक इमेज ऑफ A इन BC, दैट इज द एक्सटेंडेड पोर्शन में उसकी इमेज ले लो जो आपने एक्सटेंड करा है. तो ये वाला जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, यस, राइट, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी एक्स एक्सिस में, ठीक है. तो टेक इमेज ऑफ एक्स ए इन BC, इसका क्या मतलब है, आप A को इमेज निकाल लो. मैं इसको रीराइट करता हूं, देखो तुम्हारे लिए, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ पर. मैं बताता हूँ कैसे मैंने लिखा है इसको और क्या मतलब है इसका. सो आपको करना क्या है, टेक मिरर इमेज ऑफ A इन एक्स एक्सिस, ठीक है. मान लो वो आता है पॉइंट A', ठीक है. तो अगर A 1,1 था तो यहां से मेरा क्या आ गया, इमेज क्या आ जाएगी भाई, बताना जरा. यस, 1, -1, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस में निकालना है. सो जो C पॉइंट होगा, अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है. तो फॉर्मूला क्या है C पॉइंट के लिए, देखो. सो फॉर्मूला वुड बी C विल बी फॉर्म्ड बाय, पहली बात, जॉइन A' एंड C, और सेकेंड स्टेप, इंटरसेक्शन ऑफ मिरर, जो कि इस केस में हमारे क्या है, एक्स एक्सिस, एंड A' इज द रिक्वायर्ड C, ठीक है जी. इनफैक्ट यहां पर C नहीं लिखना चाहिए, इसको आप कर दो A' कर दो यहां पर, ठीक है. ज्वाइन A' एंड B, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ मिरर एंड A', राइट. A' का जो आपका इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, जो ये पॉइंट देगा वो होगा
सी, रिक्वायर्ड पॉइंट सी. गॉट इट. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए डैश क्या आ गया, 1 कॉमा -1. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी देन? सो इक्वेशन ऑफ ए डैश बी क्या बन जाएगी? सो इक्वेशन ऑफ ए डैश बी वुड बी समथिंग ऑफ y plus 1 is equal to 3/2 x minus 1. So this will be the equation. स्लोप फॉर्म से निकाल लिया मैंने, 2 पॉइंट फॉर्म से. इसका x इंटरसेप्ट निकाल लो, क्योंकि मिरर तो कौन है, x एक्सेस. तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करोगे, y0. तो y0 पुट करता हूँ तो देखो ये क्या बन गया, 2/3 is equal to x minus 1. This gives you x is nothing but equal to 5/3. So आपका आंसर क्या है इसमें, C is nothing but 5/3, 0. इस पॉइंट पे AC प्लस BC आपका क्या होगा, मिनिमम होगा. क्लियर है ये बात? गॉट इट. आई विल ऑल्सो शो यू अनदर सेम विद द सेम एग्जाम्पल. आई विल गेट टू अनदर प्रॉब्लम जिसमें आपको अब की बार क्या पूछा जाएगा, AC माइनस BC का जो मॉड है इसका हमें क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है. ठीक है, ये और प्रॉब्लम करेंगे अभी हम लोग, डोंट वरी. ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन द सेम थिंग. आप सिर्फ क्या करो, कंडीशन चेंज कर दो. अब AC प्लस BC नहीं, AC माइनस BC का मॉड इज मैक्सिमम प्रूव करना है हमें. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे. तो A और B वही पॉइंट्स पुराने हमारे. अब C कहीं भी हो सकता था, यहाँ 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 यहाँ. तो अगर देखो मैं एक को ज्वाइन करता कुछ इस वाले तरीके से, अगर इस तरीके से मैं C बनाता, राइट. सो ये एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ABC. ठीक है, इन ट्राइंगल वी ऑलवेज नो दैट डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, लेट्स से AC माइनस BC, ये क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स. ये हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है, राइट, देन दी थर्ड साइड. यस और नो, एग्रीड? ये होना चाहिए. और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है पता है आपको, व्हेन यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सॉर्ट, जब ये ट्राइंगल ही नहीं बचेगा. तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसी लाइन को, जो ये ए बी लाइन है आपकी, इसको आप क्या करो, एक्सटेंड करना शुरू कर दो. एक्सटेंडेड टू मीट दिस मिरर. लेट्स से वो इस मिरर को यहां मीट करती है. दिस इज द रिक्वायर्ड सी, दिस इज द रिक्वायर्ड सी. सो एक्सटेंड द लाइन, एक्सटेंड द लाइन. जिन लोगों को प्रूफ समझ में नहीं आया वो उसकी टेंशन ना लें. प्रूफ करने के लिए हम डिटेल में जब भी आप पढ़ना चाहें बाद में पढ़ सकते हैं. वी आर जस्ट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, रिमेंबर. सो एक्सटेंड द लाइन AB टू मीट मिरर फॉर रिक्वायर्ड C पॉइंट. ठीक है जी. तो ये हमें C पॉइंट उस तरीके से मिल जाएगा अगर आप इन दोनों का इसको एक्सटेंड कर दो और उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो. सो फॉर एग्जांपल AB की इक्वेशन ऑफ AB क्या बन रही है भाई, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AB दैट वी आर ऑब्टेनिंग, दैट इज y माइनस 1 इज इक्वल टू, स्लोप कितना आ गया देखो, 1/2 इंटू x माइनस 1. और मिरर तो आपको पता ही है, मिरर हमारा क्या है, x इक्वल टू x एक्सेस है, सॉरी. सो x एक्सेस इज नथिंग बट y इक्वल टू 0 लाइन. जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द आंसर. गॉट इट. सो हमने दो तरीके के प्रॉब्लम करे हैं, वो हमेशा याद रखने हैं आपको आगे से. ठीक है, कौन कौन से. सो द रिक्वायर्ड टू फॉर्मूलाज आर, सो व्हाट यू हैव टू बाय हार्ट, दैट अगर आपसे पूछा जाता है AC प्लस BC तो उसकी हमेशा क्या पूछी जाएगी, मिनिमम वैल्यू, राइट. और एक क्वेश्चन बनेगा हमेशा मॉडुलस AC माइनस BC. माइनस के केस में आपसे क्या पूछा जाएगा, you will always be asked the maximum value of this particular expression. ठीक है, दोनों के मेथड रिवाइज करने, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, पेपर में आएगा तो 15 सेकंड या 20 सेकंड में आप लोग कर पाओगे. जिन्हें नहीं आता होगा वो सोचते रहेंगे, ठीक है, या फिर वो ऑप्शन देख देख के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते रहेंगे. ओके ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फैमिली ऑफ लाइंस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So it says family of lines passing through the intersection of the lines, right? What do you mean by intersection? पहली बात, दो लाइंस का इंटरसेक्शन होना जरूरी है इस केस में. ठीक है, तो अगर दो लाइंस हैं, एक है ax प्लस by प्लस c, एक है a डैश प्लस b डैश y प्लस c डैश इक्वल टू 0. So the intersection can be written like line 1 plus lambda times line 2. So this is actually the equation of all the lines which will, this is lambda and this is L2.
So I can say in family of lines passing through intersection of two lines is given by L1 plus lambda L2 is equal to 0. इसका क्या मतलब है, मान लो आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स थी इस तरीके से, ठीक है, तो आपको एक कोई तीसरी लाइन बतानी है जो इनके क्या हो रही है, इंटरसेक्शन से पास हो रही है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे. यू कैन यूज family of lines for finding this. So this will be something of L1 plus lambda L2 equal to 0 for some lambda. तो इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, for finding this lambda. Target is for this lambda we have to work around. This is the target of this particular concept. Okay, let's see how we apply this in the questions. So it says find the equation of lines, find the equation of the straight line passing through the point of intersection of the lines. देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ठीक है, तो जैसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिख जाए तो ये दो लाइनें आ गई, तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइंस पास करेंगी, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करती हैं. तो आई कैन से ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस कैन बी टेकन समथिंग लाइक दिस, राइट. ओके, अब मुझे पर कैसी स्पेशल चाहिए, ये तो होगी इनफाइनाइट लाइंस. आई नीड अ स्पेशल केस. मुझसे सारी लाइनें नहीं पूछी गई हैं इनफाइनाइट लाइंस जो बनेंगी. आई नीड अ स्पेशल केस. स्पेशल केस कौन सा वाला चाहिए मुझे, व्हेन दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस. मुझे तो ऐसे वाला केस चाहिए जब वो इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस हो. अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, मैं आपको अगर इसलिए बताऊं, आई हैव वर्कड वेरी हार्ड टू प्रिपेयर द क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन for these online lectures. I have tried क्योंकि we have limited time. This is a revision class and we have limited time. We cannot cover entire concept from the basic to the topmost level in this, let's say, stipulated 1 hour or 1.5 hour video. So I have taken questions which actually highlights concepts. So what do you mean by equally inclined? Again, very important concept. So equally inclined to the axis means m is equal to plus minus 1. Just remember this, another formula for you. Right, so equally inclined, so it could be 45 degree or 135 degree. Remember, generally we miss out on this. We generally take only m is equal to 1. equally inclined से हमें क्या लगता है 45, but the other answer m is equal to -1 is also there, right. So equally inclined में miss नहीं करना. equally inclined में there will be 2 answers. So हमारा स्पेशल केस कैसा है, तो ये लाइन इस चीज को सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट. जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. ये किसकी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर स्लोप. स्लोप की कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई कराओगे, तो इसमें सबसे पहले इसका स्लोप निकालो. तो फाइंड स्लोप इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. आवर टारगेट इज टू अगेन फाइंड लैम्डा. तो स्लोप इन टर्म्स ऑफ लैम्डा क्या होगा, सो एम यहां से क्या होगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या आएगा 3 लैम्डा. तो 1 प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 प्लस लैम्डा. ये हो गया 3 प्लस लैम्डा, ये हो गया m. सो m इज -1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 3 प्लस लैम्डा. दिस इज द स्लोप. और अब आपको क्या चाहिए, स्लोप होनी क्या चाहिए थी आपकी 1 या फिर -1. तो इसके दो केसेस बन जाएंगे बस. सो एक केस क्या हुआ, व्हेन m इज इक्वल टू 1, तो आप क्या करोगे -1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 को कैलकुलेट कर लो, ठीक है. तो ये क्या बन गया, -1 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस lambda. And if I solve this, ये जाके क्या बना उधर, -4 is equal to 4 lambda. This implies lambda is equal to -1. एक आंसर तो ये आ जाएगा यहाँ से, that lambda is equal to -1. The other answer that you will solve is for m is equal to -1. वो कितना हो गया, -1 प्लस कुछ इस तरीके से. और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या बना, 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा. और आई कैन से लैम्डा इज इक्वल टू 0. सो दो आंसर्स आ गए. कौन कौन से, अब दोनों ये लाइंस पुट कर दो यहां पर बस, दैट इज द आंसर. सो अगर आप लैम्डा इक्वल टू -1 पुट करते हो, सो योर आंसर वुड बी व्हाट, लैम्डा इज इक्वल टू लेट्स से -1 इफ वी सब्स्टिट्यूट. सो ये आंसर क्या बन जाएगा, x प्लस 3y प्लस 4, राइट, माइनस ऑफ 3x प्लस y प्लस 4. तो इसको जो सॉल्व करके इक्वेशन आ रही है वो क्या बनेगी, 2x माइनस 2y, राइट, और 4 तो कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज द इक्वेशन. और इनफैक्ट वी कैन से x इज इक्वल टू y लाइन. ये दो लाइन कैसी है, जो आपकी इनके इंटरसेक्शन से भी पास करेगी
or that is also equally inclined to the axis. Got it? So this is your first answer. Let me rectify a small error over here. This was not 1, this was actually 3. So this lambda will not be equal to 0. So this is 3 over here, ठीक है, and this is 3. So यहाँ से देखो क्या आ रहा है, lambda is equal to 1 एक और आंसर आ रहा है. Yes, now it is true. So lambda equal to 1 के लिए भी आप सॉल्व करोगे तो lambda equal to 1 के लिए सॉल्व करते हो तो देखो क्या बन रहा है, 4x plus what? Tell me. 4x plus, yes, 4y plus 8 equal to 0, which is the another equation that will get x plus y plus 2 equal to 0. So ये दोनों लाइंस आपके आंसर हैं. ये ऐसे चीजें हैं जो they are passing through the intersection of line 1 and line 2 and they are also equally inclined to the axis. This is what is meant by this particular question and how it is being solved. So what you have to concentrate on family of lines is finding lambda. That's it. lambda निकालो, जैसे lambda equal to -1, lambda equal to 1, और उस वैल्यू को वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो. That is how you solve family of lines. Okay. Let us quickly take another problem to understand family of lines because it's a very important concept. It says there are again two lines, x minus 3y plus 1. Find the equation of line passing through the intersection of these two lines and whose distance from the origin is this. So they are passing through two lines. So आप कुछ ऐसा लिखोगे 2x plus 5y minus 9 equal to 0. ठीक है. अब आपको क्या चाहिए, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो कितना दे रखा है आपको भाई, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. दिस इज गिवन टू बी √5, राइट. तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, इसको लिखो तो सही ढंग से, फॉर्म में तो लिखो उसकी. तो अगर मैं इनको फॉर्मेट में लिखता हूं ढंग से, सो दिस बिकम 1 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स. ठीक है. फिर देखो अगला क्या बनेगा, 5 लैम्डा माइनस 3 टाइम्स वाई प्लस 1 माइनस 9 लैम्डा इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बन जाएगी. अब आपको इस लाइन की डिस्टेंस जो है फ्रॉम ओरिजिन वो √5 दे रखा है. तो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे इसमें. देखो थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा बट दिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस. तो d इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, ओरिजिन से क्या करोगे, तो 0,0 डालते ही ऊपर क्या बन गया, सिर्फ देखो 1 माइनस 9 लैम्डा मॉड डिवाइड बाय क्या था, कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट लेते थे हम लोग, कुछ याद आया. तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 3 स्क्वायर, राइट. Okay, so now we know d also, so this is given to be √5. Just what now we can do is you can just square the terms and we'll get the answer. So what we'll get, 1 minus 9 lambda square is equal to 5 into 1 plus lambda square plus 5 lambda minus 3 whole square. Now you solve this. I'm not solving this for you. Solve it to get lambda. As I already repeated, the target is always to get lambda. Here you will get value of lambda. Maybe you can get two values of lambda because it's a quadratic that you are going. You will get two values of lambda. Since if this is a single multiple choice question where single answer would be correct, one answer will satisfy. So I've taken this particular question just to highlight how you apply the concept of family of lines, right? And it's a very important topic, right? Do it very thoroughly. Okay. Okay, now let us take the last topic for this particular chapter, which is locus, and in fact one of the most important topics as well, right? This is one of the most important topics as per se your difficulty level. So it's one of the most difficult topics to understand, but we'll take some examples by which you will realize that it is not as tough as it is perceived to be. Okay, सबसे पहले अगर हम rules लिखना चाहें, what are the rules of finding the locus? So rules are as follows. The first thing that you need to do is assume the moving point, or whose locus is to be found, or point whose locus is to be found as h comma k.
as h comma k, right? Second step is find equation in terms of h and k and constants, that is independent of any other variable, independent of any other variable, right? And then the third step would be to replace h by x and k by, I'll write it again, don't worry. So replace k by y. This will be your locus. This is how you find locus. So before going further, what is locus? So locus को अगर हम सिंपल सी बात बोलें, locus is a trajectory of a point which it follows or which it makes by following a certain specific constraint. So I am repeating. So locus क्या चीज है? Locus is a, पहली बात trajectory, ट्रेजेक्ट्री बोल दो या कर्व बोल दो, बात बराबर है. ट्रेजेक्ट्री बोलो, पाथ बोलो, कर्व बोलो, सब ये एक ही बात है. ट्रेजेक्ट्री विच अ पॉइंट फॉलोज, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट फॉलोज व्हेन मूविंग अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट, व्हेन मूविंग अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट. सो फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इसका समझने क्या है, सर्कल. सर्कल एज अ लोकस. लोकस कैसा है, उसमें देखो कंस्ट्रेंट क्या है कि आपका एक सेंटर है और आपका जो थ्रेड है वो फिक्स्ड है. आप इसको पकड़ के घूमना शुरू कर दो. आप इसको क्या कर रहे हो, पकड़ के घूम रहे हो, तो जो भी डायग्राम बनता है वो क्या बन जाता है, सर्कल. सो दिस इज अ कंस्ट्रेंट ना, यू आर मूविंग विद अ कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट क्या है कि आप इस फिक्स पॉइंट से बंधे हो और ये आपकी थ्रेड एक फिक्स डिस्टेंस पे है. तो जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी या फिर जो पाथ बनेगा, जो कर्व बनेगा, उसे हम लोकस कहेंगे. इसलिए हम कहते हैं सर्कल इज अ लोकस. इनफैक्ट सर्कल, पैराबोला, आपके जितने भी कोनिक्स हैं, ये सारे क्या हैं, दे आर ऑल लोकस. सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय लोकस. नाउ लेट अस अप्लाई दिस इनटू द प्रॉब्लम्स. लेट्स सी. So the question says find the locus of the point so that join of this and this subtend a right angle at the moving point. So आपके मान लेते हैं A पॉइंट एक गिवन है जो है -5,1, B पॉइंट भी हमारे पास है गिवन दिच इज 3,2. ठीक है, ये A और B कुछ कैसे मूव कर रहे हैं, नोटिस करो, A और ये है B. जो एक मूविंग पॉइंट है, मैंने क्या कहा था, मूविंग पॉइंट हो या ट्रेजेक्ट्री निकालने वाला पॉइंट हो, उसको क्या ले लो, h, k. So let's say this is your P point which I have assumed to be h, k. ठीक है, ये क्या कहा जा रहा है, they are subtending a right angle at this point. ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है आपको. अब अगर ये राइट देखा जाए तो ट्राइंगल ए पी बी बिकम्स इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. कैसा ट्राइंगल है, एंगल किसमें 90 डिग्री है ना भाई, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप क्या बोल सकते हो मुझे, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए पी स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर. यस, कैन यू टेल मी. और ए पी तो हमें पता ही है, ए पी देखो क्या है, -5,1 एंड दिस इज 3,2. सो वी ऑल्सो नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वेयर. ए बी स्क्वेयर कितना हो गया, 2 - 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 3 - 5 8, 8 स्क्वायर कितना हो गया भाई, 64, 65 आ गया ये. ठीक है जी. अब देखो ए पी स्क्वायर बताओ कितना हुआ, ये क्या बन गया, h + 5 स्क्वायर प्लस k - 1 स्क्वायर. आगे वाला बताओ, h - 3 स्क्वायर प्लस k - 2 होल स्क्वायर. अब देखो मेरा सेकेंड स्टेप भी हो गया इसमें कंप्लीट. एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था. ठीक है, लोकस देने से देके सिर्फ घबराए गए आप लोग, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन था. सेकेंड था फाइंड एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच एंड के एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर वेरिएबल. सो इस इक्वेशन में अगर मैं इसको अपनी 2 इक्वेशन नाम देता हूँ, इसमें कोई भी और वेरिएबल है, इज देयर एनी अदर वेरिएबल इन दिस क्वेश्चन, नो, देयर इज नो वेरिएबल. दैट मीन्स वी आर ऑन आवर मार्क. सो सिर्फ अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. देखो 65 h स्क्वायर 2 बार आएगा यहाँ, 2h स्क्वायर, 2 टाइम्स k स्क्वायर विल कम आउट 2 k स्क्वायर. यहाँ से क्या आएगा 10h, यहाँ से कितना आएगा -6h. ठीक है, तो कितना बन गया 4h. ठीक है, यहाँ कितना आएगा -2k, यहाँ पर कितना आएगा -4k, ये कितना बन गया -6k. यहाँ कितना आएगा 25, 1, 26,
26 प्लस 9, यस 35, 35 प्लस 4 कितना हो गया, कुछ इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन। तो अगर आप इसकी नेट इक्वेशन देखते हो तो क्या आ रही है, 2h² प्लस 2k² प्लस 4h, ठीक है जी, माइनस 6k, और माइनस इधर आके कितना हो जाएगा, बता सकते हो मुझे? यस एवरीबडी कैन ऑब्वियसली 26। और अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या हुआ, x² प्लस k² प्लस 2h माइनस 3k माइनस 13 इक्वल टू 0। एंड व्हाट वाज आवर लास्ट स्टेप, replace h by, yes, so the answer to this particular problem then becomes x square plus y square plus 2x minus 3y minus 13 equal to 0. That's it, this is the answer. अब मैच कर लो बस कौन सा आंसर मैच हो रहा है इन क्वेश्चन में से। तो फर्स्ट आंसर इज मैचिंग विद आवर पर्टिकुलर आंसर। दिस इज हाउ यू सॉल्व लोकस प्रॉब्लम। ओके, लेट अस अप्लाई द लोकस प्रॉब्लम इन अदर प्रॉब्लम। Now let us take another problem. What it says that the locus, you have to, there is a rod of length L जो मैंने दिखा रखी है AB, ठीक है, AB is the rod that I have taken here which is of length L, ठीक है जी, and it is slipping through two mutually perpendicular lines. You have to find the locus of the rod, which locus of a point which divides it in the ratio m1:m2, ठीक है। रॉड पहली बात एक स्लिप हो रही है तो मतलब इधर कहीं जा रही है और ऊपर से नीचे आ रही है, कुछ याद आया, हमने एओडी में ऐसा कुछ क्वेश्चन करा हुआ है, राइट। सो मैंने वो पॉइंट, ये जो पी पॉइंट था जो मैंने यहाँ पर x1 y1 दिखा रखा है, तो डायग्राम में मेरे पास x1 y1 है, ठीक है। लेट्स एज्यूम तुम्हारे लिए h कॉमा के ले लेते हैं उसे, ठीक है, जो मैंने नोटेशन बताई, जो भी मूविंग पॉइंट है उसे h कॉमा के ले लो। अब हमारा टारगेट क्या है, हमें इक्वेशन बनानी है टर्म्स ऑफ एच एन के एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल। सबसे पहला काम क्या करना है, आप ये मत सोचो कि इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल कहां से आएगा, लेट्स स्टार्ट फॉर्मिंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच एन के। सो एच एन के में कैसे बनेगी, सेक्शन फॉर्मूला दे रखा है ना भाई आपको, इसमें सेक्शन हुआ है, तो सेक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ एच। एच क्या होगा बता सकते हो, एच क्या बनेगा बताओ, एच क्या हो जाएगा, यस एब्सोल्युटली, so h would be m2 times a, right, plus m1 times 0 by m1 plus m2, और सिमिलरली k क्या हो जाएगा, m2 0 plus m1 times b by m1 plus m2। तो यहां से h की वैल्यू क्या आई आपके पास, m2a बाय m1 प्लस m2, और k की वैल्यू कितनी आई, m1b बाय m1 प्लस m2। अब दूसरी दिक्कत इस क्वेश्चन में आती है, सर ये a और b कहां से आ गया, यू हैव स्टार्टेड डूइंग द क्वेश्चन बट वेयर डज दिस a एंड b आर कमिंग फ्रॉम, ये तो क्वेश्चन में थे ही नहीं। अब देखो वो कहां से आए भाई, मैं कहता हूं एक यहाँ डायग्राम बना के देखते हैं, ये l है, ठीक है, तो यार ये कहीं ना कहीं तो इसका x इंटरसेप्ट होगा और कहीं ना कहीं इसका y इंटरसेप्ट होगा। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया, लेट्स दी x इंटरसेप्ट भी a एंड y इंटरसेप्ट भी b, ये मैंने एज्यूम कर लिया इस क्वेश्चन में। ओके, एनी हार्म्स, तो ये अगर एज्यूम कर लेते हो कि ये a और b हैं, तो वो ये a और b यहाँ मैंने डिनोट कर दिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली क्या है, जो मैं सबसे ज्यादा यूज करूंगा और जो लोकस में तुम्हें हमेशा फाइंड करनी चाहिए, दैट लोकस में ऑलवेज वॉच आउट फॉर अ कंस्ट्रेंट, फॉर कंस्ट्रेंट, कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होगा ही होगा, कंस्ट्रेंट निकालना ही निकालना है, वो कैसे होगा वो देखो। यहां मैं कह सकता हूं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर फॉर एनी ए और बी। क्यों, ये क्या हो रहा है कि ये स्लिप हो रही है, तो ये मतलब थोड़ा इधर जा रही है, ऊपर से नीचे गिर रही होगी, तो ए और बी की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू थोड़ा चेंज होगी। भैया तो लेंथ ऑफ रॉड है, लेंथ ऑफ रॉड थोड़ा हिला दोगे आप, लेंथ ऑफ रॉड तो बी विल बी फिक्स, दैट इज एल, दैट मीन्स वी विल डेफिनेटली यूज कंस्ट्रेंट ऑन एल। हमें एल ये वाली कंडीशन पक्का पक्का यूज करनी है क्वेश्चन में। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप ए की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से अगर नोटिस करो तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, m1 plus m2 h by m2, right, and similarly I can say b from here is nothing but m1 plus m2 times k upon
m1, इसमें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमने हाईलाइट करी हुई है इक्वेशन। तो अगर मैं हाईलाइटेड वाली में जाता हूँ तो ये देखो क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 स्क्वेयर, राइट, h स्क्वेयर अपॉन m2 स्क्वेयर प्लस m1 प्लस m2 स्क्वेयर, अगेन हेयर b स्क्वेयर में भी आएगा, k स्क्वेयर बाय m1 स्क्वेयर इज इक्वल टू l स्क्वेयर। नाउ ये सेकेंड वाला स्टेप नहीं हो गया, देखो नोटिस करो, यू हैव गॉट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड k विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर वेरिएबल। क्यों, m1 और m2 में तो है ये, सिर्फ m1 और m2 तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना भाई, ये रे गिवन, इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो गिवन था हमें, तो कोई टेंशन ही नहीं थी यहाँ। तो बस अब करना क्या है, जस्ट रिप्लेस व्हाट, एग्जैक्टली h और k को आप रिप्लेस कर दो, तो देखो क्या बनेगा, दिस बिकम्स व्हाट, अगर मुझे देखो नीचे यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, आंसर ऑप्शन में देखो, एलसीएम और ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, m1 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कुछ नहीं करना, अब यहाँ 1 हो गया क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, और ये एलसीएम लेके m2 स्क्वेयर इधर चला जाएगा, तो m2 स्क्वेयर y2 स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट, l स्क्वेयर m1 स्क्वेयर m2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 whole square. So this is the answer we were looking for. Let me just rub this off. Yeah, so this is the answer which we actually targeted. This is the answer. अब आप मैच कर लो कौन सा आंसर मैच हो रहा है, देखो m1 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर m2 वाई स्क्वेयर, यहाँ ये नहीं आ रहा, नहीं ये नहीं है आंसर, नीचे वाले में देखो, yes this is completely matching the statement that we have written, but there is a twist, यहाँ m2x आ गया, मुझे चाहिए m1x, so yes this is your option, right? So this is all about the locus problems. You can solve locus, there is infinite number of problems, in fact locus सबसे ज़्यादा अच्छा बनता है circles के अंदर, which will also do there as well. Just re-revise, keep in mind आपको moving point को h k से कंडीशन बनाने की कोशिश करें, क्वेश्चन में जो कंस्ट्रेंट गिवन है उसे यूज करके ही आपकी क्वेश्चन में जो कंडीशन बनेगी वही फ्री कंडीशन बनेगी। फ्री कंडीशन का मतलब जिसमें h और k की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होगी। फाइनली रिप्लेस h and k by x to find the locus. Okay, so this was all about the chapter. I have tried my level best to complete each and every aspect which is important as per say the revision point of view, and this topic is extensive in the sense कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, डिफ़िकल्टी लेवल सिंपल है इस चैप्टर का। स्पेसिफिकली अगर आप जेई एडवांस लेवल हटा दो, ठीक है, तो उसमें मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो रिजल्ट भी पर ज़्यादा आ जाता है। तो आपको जितने मैंने टॉपिक्स कराए हैं उसे आप रिवाइज करें। आई हैव ऑल्सो स्टेटेड इन द लास्ट क्लास दैट फॉर द वर्कशीट्स, दो आई विल बी सेंडिंग वर्कशीट्स, डू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विच आई एम रिपीटिंग अगेन, राइट। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी ही करनी है इस चैप्टर के लिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस लेवल। इट्स अ वेरी गुड स्टैंडर्ड बुक फॉर जेई मेंस फॉर सम चैप्टर्स, राइट। जेई मेंस के लिए कर लो। आई विल बी सेंडिंग वर्कशीट्स, ठीक है, ये वर्कशीट्स तो मैं सेंड करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको लिमिटेड टाइम फ्रेम में और रिवाइज करने की इस चैप्टर को ज़रूरत है। ज़्यादा करने बैठोगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो डू नॉट गेट इनटू ट्रैप ऑफ सॉल्विंग लोनीज, राइट। अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोनी करें, लोनी करनी है, बहुत अच्छी किताब है, बट व्हेन वी हैव सफिशिएंट टाइम। बट इफ यू आर नॉट हैविंग टाइम, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग लोनीज बिकॉज इट विल नॉट हेल्प यू आउट। पेपर में उतना टफ क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाने वाला, तो हम काहे को लोनी करके टाइम वेस्ट करें, ठीक है। आई होप द टुडेज सेशन वॉज प्रोडक्टिव and you will be able to utilize this in your particular preparation. We'll meet tomorrow, okay, at the same time with a new topic. We'll start circles tomorrow, okay. Have a good night, see you tomorrow, bye bye guys.